दुर्गापुर स्थित मार्कोनी एवेन्यू मंगलवार की रात बमों की आवाज से थर्रा उठा। बताया जाता है कि स्थानीय 9/19 मार्कोनी एवेन्यू के घर के बाहर बमबाजी की गई। उस घर की महिला जीना पॉल ने आरोप लगाया कि उस रात 2 बम फेंके गए। जीना पॉल फिलहाल गर्भवती है। घर पर उनकी मां और 3 बच्चे थे। पूरा परिवार दहशत में बाहर आ गया। घटनास्थल पर बम की सुतली पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर एसीपी के नेतृत्व में व्यापक पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हालांकि इस बमबाजी की घटना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परिवार के सदस्य अरूप पॉल की चंडीदास बाजार स्थित दुकान पर हंगामा हुआ था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये बमबाजी की घटना उसी विवाद से तो जुड़ी नहीं है, लेकिन बमबाजी के आरोपों ने निश्चित रूप से शांत प्रतीत होने वाले औद्योगिक शहर को अशांत कर दिया है। देख रहे हम लोग अंदर में बच्चे लोग को सुला रहे, सेरेब्रल पर से एक हैंडी के बच्चे देख रहे, बाहर में इतना जोर से आवाज हुआ, सब टूट गया है। इतना बच्चे लोग बहुत डर गए हैं। हम लोग क्या करेंगे नहीं पता चल रहा। किसर आवाज হয়েছিল? बम आवाज हुए है। बम दो बम फेंके हैं जोर से, बहुत जोर आवाज हुआ है। কটা দুটো बम। কটা বাচ্চা ছিল বাড়িতে? আপনি আর কে ছিলেন বাড়িতে? हम माँ है, 3 बच्चा है मेरा घर में। हम प्रेग्नेंट है। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। এখন দোকানের মাল দোকানে আর কিছু জানি না। এখন রাতেবেলা আমি তো পালিয়ে বেরোচ্ছি, পুলিশ এসেছিল আমার বাড়িতে, আমি পালিয়ে বেরোচ্ছি। এখন বউ বললো যে এরকম হয়েছে, তো আমি কি করব, আমাকে তো আসতে হবে। আমার বাড়িতে উপরে কেউ নেই, মা মরে গেছে, বাবা মরে গেছে, বউ মারা গেছে আমার। ঠিক আছে, কার উপর সন্দেহ হচ্ছে? কার উপরে? রমাপ্রসাদ হালদার। তো এটা তো রমাপ্রসাদ হালদাররা করেছে। এটা এতদিন ব্লকের কাছে ছিল, ব্লকের কাছে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, সেখানে দেখাশোনা করছিল বান্টি সিং আর দেবাংশু দেখাশোনা করছিল। এখন তারাও সারেন্ডার করে দিয়েছে। আজকে রমাপ্রসাদ হালদার তো আমাকে অনেকবার ফেটও মেরেছে, অনেকবার প্রেসার দিয়েছে, ইমিডিয়েট দোকান দিয়ে দিতে হবে। যেভাবে একটা দোকানকে ভাড়াকে কেন্দ্র করে মালিক পক্ষ একজন আর ভাড়া দিয়েছে একজন, ভাড়া নিয়েছে একজন, এই দুই পক্ষের দুই গোষ্ঠী, তৃণমূলের রাজীব ঘোষ মণ্ডল ব্লক সভাপতি সে একটা পক্ষে, রমাপ্রসাদ হালদার সে তার একটা পক্ষে। এই যে দুই পক্ষের লড়াই পার্টি বেশি ফাইসলা হলো। আর ফাইসলা হওয়ার পরেও মালিক পক্ষ দোকান ঘুরে পেলেন না। গতকাল রাত্রে সেই মালিক পক্ষের ঘরে বোমা পড়েছে। অর্থাৎ ভাবুন একবার, একটা দোকান ভাড়ায় কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াই, রমাপ্রসাদ হালদার ভার্সেস রাজীব ঘোষ। আর তার ফলে দুর্গাপুরের টাউনশিপে এক ভয়াবহ তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে মানুষ বাস করছেন। কোথায় বাস করছি আমরা? এর নাম এগিয়ে বাংলা। দিদিমণি বাংলাকে শেষ করে দিয়েছেন। দিদিমণি বাংলার পুলিশ মন্ত্রী, তারপরও দুর্গাপুরের প্রশাসন, পুলিশ কোথায়? কেন আটকাতে পারছেন না? কেন গুলি চলছে? কেন অ্যারেস্ট হচ্ছেন না? কেন এত গড়ালো? কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে কি? পুলিশ কোথায়? পুলিশ কোথায়? অর্থাৎ পুলিশ নেই। তৃণমূল পুলিশ এক হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য বাংলার, দুর্ভাগ্য দুর্গাপুর। আপনার বলেছিলাম দুর্গাপুর শান্ত, শিক্ষিত, ভদ্র এলাকা, দুর্গাপুরে গুলি চলছে। গতকাল একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে, যেটা শুনলাম যে বোধহয় যিনি ভাড়াটে ছিলেন, এতদিন বন্ধ ছিল, তারপর যিনি ভাড়াতে আছেন তিনি বোধহয় দোকানটা খুলেছিলেন, যার যে মালিক তার সাথে একটা সংঘাত বাঁধে। তো তারপর সে তালা দেয় এবং বিকেলের দিকে আবার তালা ভাঙা হয়। এরকম একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে এবং রাত্রিবেলা একটা বোমাবাজির ঘটনা ওই বাবু পালের বাড়িতে ঘটেছে, সেটাও আমরা শুনেছি। কিন্তু সঠিকভাবে আমি বলতে পারবো না বা না জেনে আমার মন্তব্য করা উচিত হবে না যে যারা করেছেন। তবে আমার মনে হয় এটা ভাড়াটে এবং মালিকের ব্যাপার, তো এখানে কোনোভাবে হয়তো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঢুকে যাচ্ছেন। তবে এটা যেহেতু হাইকোর্টের বা স্থানীয় কোর্টের বিচারাধীন, আমার মনে হয় এটাতে আমাদের ইন্টারফেয়ার না করাই ভালো। মানে পুলিশকে কি বলবেন না, মানে নিরপেক্ষভাবে নিউট্রালি? অবশ্যই যেহেতু কোর্টের যে ভার্ডিক্ট হবে, কোর্ট যেটা বলবে পুলিশ নিশ্চয়ই সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবে। এর মধ্যে তো আমাদের কোনো পক্ষ নেওয়া না পক্ষ নেওয়ার কোনো, আমাদের কাছে যখন এসেছিলো আমরা একটা সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম এবং এটা মধ্যস্থ করে দিয়েছিলাম। এবার তারপর সেটা মানা হয়নি, তার পছন্দ হয়নি, নাই হতে পারে। आसनसोल के कला स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बुधवार को वेस्ट बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन काजी नजरुल विश्वविद्यालय की शाखा की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस प्रेसमेट के माध्यम से सीनियर प्रोफेसर सजल भट्टाचार्य ने कहा कि मंगलवार को काजी नजरुल विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर साधन चक्रवर्ती की है। उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजह से विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण बन गया है कि उनके साथ अब काम करना असंभव है।
उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत डॉक्टर साधन चक्रवर्ती को वाइस चांसलर के पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि वर्तमान में डॉक्टर साधन चक्रवर्ती यहाँ के वाइस चांसलर है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि जब से नए रजिस्ट्रार आए हैं और उन्होंने वाइस चांसलर के आर्थिक भ्रष्टाचार को पकड़ना शुरू किया है, तब से उन्होंने इस तरह का रुख इख्तियार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने वाइस चांसलर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को डीए के समर्थन में पूरे राज्य में जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल बुलाई गई थी, उसका समर्थन उनके एसोसिएशन ने किया था, जबकि प्रोफेसर के अनुसार उनके एसोसिएशन के लोगों ने बैच पहनकर हड़ताल का विरोध किया था। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसोसिएशन की मांग है कि जल्द से जल्द वाइस चांसलर को बर्खास्त किया जाए। अगर राज्य सरकार उनको नहीं हटाती है और उनको पुनर्बहाल करती है तो यहाँ के कर्मचारी उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब इस पूरे मामले में साधन चक्रवर्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वाइस चांसलर साधन चक्रवर्ती पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाने वाले काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सह फाइनेंस ऑफिसर चंदन कोनार के खिलाफ साधन चक्रवर्ती ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। কথা বলছি এই প্রেস কনফারেন্স ডাকার উদ্দেশ্য ছিল কালকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেসে যে সমস্ত খবর বেরিয়েছে যেখানে ডিএ আন্দোলনের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারটার প্রতিবাদ করা। এক, দুই হচ্ছে আমরা এই উপাচার্যের যে পদত্যাগ দাবি করছি, এই উপাচার্যের সঙ্গে যে কাজ করব না সেই ব্যাপারে খুব পরিষ্কারভাবে সমস্ত শিক্ষকের এক কণ্ঠস্বর সেটা আমি প্রতিধ্বনিত করতে চেয়েছি। দুই, 3 নম্বর হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের যে আর্থিক ব্যাপারে বলুন, প্রশাসনিক ব্যাপারে বলুন, যে দায় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার কথা ছিল সেই দায় দায়িত্বের অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করেছি। যদি উনি পুনর্নিযুক্তও হন, উনি আমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন না। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR स्कूल, Smart education. स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, जेक्सपो के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसनसोल के कार्यालय में मॉडल करियर सेंटर आसनसोल के सहयोग से जॉब ड्राइव कैंप चलाया गया। इस कैंप के जरिए NCS पोर्टल में रजिस्टर्ड युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। आसनसोल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने जॉब ड्राइव के संबंध में बताते हुए कहा कि सरकारी नौकरियां सर्विस कमीशन के जरिए ही दी जाती है, लेकिन जिन युवाओं के नाम NCS पोर्टल में रजिस्टर्ड है उन्हें किसी भी क्षेत्र में रोजगार देने में दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से उन युवाओं के लिए जॉब ड्राइव कैंप लगाया गया है, जिसके तहत विभिन्न निजी कंपनियां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किए गए युवाओं की बहाली अपनी कंपनियों में करेंगे, लेकिन ये नौकरियां सरकारी नहीं बल्कि निजी रहेंगी। बुधवार को रिलायंस जियो फाइबर के कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय में लगभग 70 से 80 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सभी कैंडिडेट्स को ये सुविधा दी जाएगी। আমরা আজকেও আশাবাদী যে আজকে যে ছেলেমেয়েরা আসছেন তাদের থেকে আমরা কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবো। এই করে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা এখনও আমাদের কাছে নাম লেখানো আছে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেই চেষ্টাটা আমাদের চলছে। আজকে সেই অনুপাতে আমরা একটা জব ড্রাইভ এখানে অ্যারেঞ্জ করেছি। তো এই জব ড্রাইভ সঙ্গে কোনো অন্য সংস্থাও যুক্ত আছে?
না, জব ট্র্যাকটা সম্পূর্ণভাবেই সরকারিভাবেই আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। অন্য সংস্থা মানে প্রাইভেট কোম্পানি যেগুলো রয়েছে তারা শুধু লোক নিতে আসছেন। এই অর্গানাইজেশনটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের তরফ থেকে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং মডেল कैरियर सेंटर ये दुए मिली ये उद्योगটা চলছে। सर जो भी यहाँ पर जॉब के लिए जो भी कैंडिडेट्स लेने के लिए कंपनीज आ रही हैं तो क्या उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ओर से ही बुलाया जा रहा है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो एंट्री है जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो कैंडिडेट के हम लोग बुलाता है। इसका पहले जो किया है हम लोग ही उसको इनवाइट करते हैं, कंपनी को हम लोग ही इनवाइट करते हैं जो आइए हमारा पास बहुत सारे कैंडिडेट का नाम है, हमारे पास डेटा बैंक है, आप लोग काम कीजिए, हमारा डेटा बैंक से कैंडिडेट आप सिलेक्ट कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, वहाँ से कैंडिडेट। आखिरकार नागरिकों का आंदोलन रंग लाया। 2 दिन पहले 39 नंबर और 87 नंबर वार्ड के नागरिकों ने पेयजल की मांग पर पार्षद का घेराव किया था और नगर निगम के महामहिमों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। बुधवार को उनके इस प्रतिवाद का असर दिखा। आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय ने पीएचई के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन वार्डों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दरअसल 39 और 87 नंबर वार्ड में जलापूर्ति पीएचई के जरिए ही होती है, लेकिन पीएचई के कई बल्ब खराब पड़े थे जिस कारण नगर निगम के विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति बाधित हो रही थी। मेयर ने पीएचई विभाग को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द खराब पड़े बल्ब को ठीक कर बाधित जलापूर्ति को सुचारू किया जाए। 39 এই ওয়ার্ডগুলোনে পিএইচই থেকে জল দেওয়া হয়, কিন্তু পিএইচির না ভালভের অবস্থা খারাপ, ভালভ ম্যানের অবস্থা খারাপ, এবারে মানুষকে জল দিতে পারছে না। ওখানে মানুষ বিক্ষোভ করেছিল, আমাদের কাউন্সিলর এখানে গেছিলো, যাওয়ার পর তাকে বলেছিল, সে কারণে আজকে মিটিংটা ডেকেছিলাম। পিএইচির সমস্ত অফিসার, চিফ এক্সিকিউটিভ ছিল, এমনি এক্সিকিউটিভরা ছিল, ইঞ্জিনিয়াররা ছিল, তো তারা আশ্বস্ত করলেন, তাদেরকে পাঠালামও আমি ওখানে এখন যে প্রতিদিন 2 বার করে জল ট্যাঙ্কে জল তুলে দিতে হবে। लोगों के आंदोलन का असर हुआ, ये एक सकारात्मक बिंदु है, लेकिन ये असर आंदोलन करने के बाद हुआ यह इस बात को दर्शाता है कि अब वो समय आ गया है कि आधारमूल जरूरतों के लिए भी नागरिकों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसे मुहैया करवाने के लंबे चौड़े वादे नेताओं के द्वारा चुनाव के समय किए जाते रहे हैं।